Good morning, students. I hope you all are good at home and enjoy your online classes. Today we start exercise 13.7 volume of cone. Before this exercise we revise the formulas of related to cone. Okay, so let's see. First of all, it is a cone. Its height is h, r and this is slant height l. Okay, first of all, CSA pi r l, TSA pi r l plus r, and volume 1/3 pi r square h. Okay, and what is L? L is slant height. Its formula is h square plus r square. Okay, now first of all pause the video and note down these formulas. आपने पहले भी डाउन राइट करके हैं, आपको सिर्फ रिवाइज करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आज इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ ये वाला फॉर्मूला काम लेंगे. ओके, so in first question, find the volume of the right circular cone with radius 6 cm, height 7 cm. Volume of cone 1/3 pi r square h. 1/3 22/7. r की वैल्यू 6 × 6, h की वैल्यू 7. ये 7 से 7 कट हो गया, 3 से ये 2 टाइम कट हो जाएगा. ये 44 × 6 ये हो जाएगा 4 24 25 255 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, फर्स्ट का आंसर ये है. सेकंड का, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 22/7 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 12. ओके, इससे कट हो गया 4 टाइम, ये कट हो जाएगा 0.5 टाइम. 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 3.5. अब इन्हें यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे. 44 मल्टीप्लाई 35 20, ये 20 22 12, और ये हो जाएगा 12 और 1 13. 0451 1540 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो आपको कैलकुलेशन करनी है इन क्वेश्चंस में, और भी कुछ नहीं है. फॉर्मूला आपका है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, नाउ कैलकुलेट दीज formulas. Okay, so now pause the video and note down the solution. So now second question. Question is, find the capacity in liters of a conical vessel with these dimensions are given. Okay, first of all, given that radius is 7 centimeter and slant height is 25 centimeter, but formula is 1/3 pi r square h, and given that r and l. So first of all find h. So let's see. h is equal to under root l square minus r square. h is equal to under root l square 25 square minus 7 square. h is equal to 625 minus 49. h is equal to 576. And we know that it is the square of 24. Okay, so h is equal to 24. Now using formula 1/3 pi r square h, and find the volume of cone. So volume of cone 1/3 pi r square h. 1/3 22/7. r की वैल्यू 7 and h की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7 24. ये 7 से 7 कट हो गया, ये 8 टाइम कट हो गया. इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 154 मल्टीप्लाई 8
मल्टीप्लाई करेंगे अब ये 32 43 4 8 और 4 12 ओके। ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया है। वी हैव टू फाइंड आंसर इन लीटर। सो फॉर डिवाइड बाय 1000 ये हो जाएगा 232 अपॉन 1000 लीटर। ओके, वी नो दैट 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. So 1.232 liters. It is our answer. Similarly, solve second question. In this question, also find the radius. Okay, first of all, find the radius. R is equal to under root L square minus H square, 13 square minus 12 square, and we get 169 minus 144. R is equal to under root 25, and we know that it is the square of 5. Okay, so volume of cone 1/3 pi r square h, 1/3 22/7 multiply 5 multiply 5 multiply h की वैल्यू 12। ये 4 टाइम कट हो जाएगा। ओके, अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। इन्हें सॉल्व करेंगे 55 25 25 4 2200/7। ओके, 1000 से डिवाइड कर देंगे इसे भी हम। 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2200/7 मल्टीप्लाई 1/1000। ये 20 से 20 कट हो गया। 22/70 इसे कट करेंगे 11/35 लीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर है 11/35 लीटर्स। हमने यहाँ पे क्या है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया था। मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद जब मैंने कट किया तो 11/35 लीटर, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 centimeter cube. Find the radius of base. Use pi 3.14. So let's see its solution. Height 15 centimeter and volume 1570 centimeter cube. Find the radius 1/3 pi r square h is equal to 1570. R square is equal to 1570 multiply by 3 upon pi h. R square is equal to 70 multiply by 3 and 3.14 multiply by 15. ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 00, ये 5 10 कट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद इसे कट करेंगे 3 1 और 4। ओके, ये 314 कट हो जाएगा। R इज इक्वल टू 100 एंड R इज इक्वल टू √100। R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. First of all, given that height 9 centimeter and volume 48 pi. Okay, we have to find diameter. First of all, find radius, then multiply by 2, we get diameter. 1/3 pi r square h is equal to 48 pi. R square is equal to 48 pi. Multiply by 3 upon pi h. Pi से pi cancel. R square is equal to 48 multiply by 3 and h की वैल्यू 9। ये 3 टाइम कट हो गया।
ये 16 टाइम. ओके, r is equal to root 16 and we know that r is equal to 4 centimeter. And what is diameter? Diameter is equal to 2 multiplied by radius. 2 multiplied by 4 we get 8 centimeter. Okay, very easy question. Now pause the video and note down the solution. So now question number 5. A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter depth. What is the capacity in kiloliters? आपको capacity find करनी है kiloliters में. So first of all given that diameter 3.5 and radius 3.5 upon 2 meter. Okay, and its height, depth का मतलब height है. Its height is 12 meter. Find the volume. Volume of conical pit. Volume of conical pit 1/3 pi r square h. Putting these value and find the answer. 1/3 22/7 and r is 3.5/2. 3.5/2 and h की वैल्यू 12. Okay, so this is 4 टाइम. ये कट हो गया 7 0.5. Volume is 22 multiplied by 0.5 we get 11 and 3.5. And find this answer. 11 multiplied by 35 38.5 meter cube. And we know that 1 meter cube is equal to 1000 liter and 1 meter cube also 1 kiloliter. So in kiloliters this is same kiloliter. Okay, 1 meter cube is equal to 1000 liter and 1 meter cube is equal to 1 kiloliter. 1000 लीटर्स को 1 किलोलीटर लिख सकते हैं हम. सो इसका आंसर आ जाएगा V is equal to 38.5 kiloliters. Now pause the video and note down the solution. So question number 6. Question number 6 is the volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find its height and slant height and CSA. So look, first of all given that diameter 28 centimeter, so radius is 14 centimeter and volume 9856 centimeter cube. Find height 1/3 pi r square h is equal to 9856. H is equal to 9856 multiply by 3 upon pi r square. H is equal to 9856 multiply by 3, 22 multiply by 7 and r is 14 multiply by 14. So calculate this value. 7 2 time. Okay, and 2 ये कट हो जाएगा. मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ. कट हो गए. ये होगा 4 9 और 2 8 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाय 14. ये 11 से कट करूंगी मैं. ये 2 टाइम कट होगा. उसके बाद ये हो जाएगा 4 4 एंड ये हो जाएगा 4 8 88. 4 9 2 8 डिवाइडेड बाय 11. 4 44 5 2 4 44 8 8 8 4 4 8. ओके, नाउ ये दोबारा कट होगा 2 2 4 और अब मैं 14 से कट करूंगी इसे. h इज इक्वल टू 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 14. 14 से कट हो जाएगा 1 टाइम और ये 6 टाइम. तो h की वैल्यू आ जाएगी 48 सेंटीमीटर.
ओके, एच की वैल्यू आ गई 48 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू निकालनी है एल की। एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर की वैल्यू 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। 14 स्क्वायर 196 एंड 48 हो जाएगा हमारे पास। 48 स्क्वायर हो जाएगा ये 8 8 जा 64, ये 20 32 35 36 37 38 39 2304। L is equal to 2500। L is equal to 50 सेंटीमीटर। ओके, L की वैल्यू आ गई आपके पास 50 सेंटीमीटर। अब हमें CS से फाइंड करना है, पाई आर एल की वैल्यू निकालनी है। CS से ऑफ कोण पाई आर एल 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 50, ये कट हो जाएगा 2 टाइम। 22 मल्टीप्लाई बाय 100 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको ध्यान से समझना है। लुक, अ राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड A5, 12 and 13 is revolved about the height 12 centimeter. Find the volume of solid obtained. Okay, it is a given a right circular triangle. Right circular cone आपको given है. It means its height is 12 and base is 5 and it is 13. Okay, इसे किसके कौन सी वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं? 12 इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। जब हम इसको ऐसे चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे तो ये कौन की शेप बनेगी। ओके, ये कौन की शेप बनेगी। आपको एक बात बता देती हूँ, जिसके भी अबाउट रिवॉल्व करते हैं ना, वो साइड हमेशा हाइट होती है। ओके, जिस भी साइड के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं वो साइड हमेशा हाइट होती है, और रिमेनिंग जो साइड है वो हमारी एच आर होती है। ठीक है, एंड थर्ड साइड जो 90 डिग्री के सामने वाली है वो तो हमारा हमेशा स्लैंट हाइट होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जिसके अबाउट रिवॉल्व करते हैं वो हाइट होती है और ये बेस होता है आर। ओके, सो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। सो हाइट इज, जस्ट अभी मैंने बताया, जिसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं वो हाइट है, एंड बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 5 मल्टीप्लाई 5 पाई मल्टीप्लाई ये 12। ओके, आपका जो आंसर है ना वो इसने पाई की फॉर्म में ही गिवन है, तो यहाँ हम सिर्फ इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पाई आंसर आ जाएगा। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसमें सिर्फ एक चीज चेंज करिए, अबाउट किसके रिवॉल्व करा है। सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसके अबाउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसमें आर तो आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि किसके अबाउट रिवॉल्व किया है, 5 सेंटीमीटर साइड वाले की। ओके, सो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा, इसे मैं V1 ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं V2 ले लूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे बाद में इसका रेशियो भी निकालना है। ये V2 है मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। V2 1/3 पाई 12 मल्टीप्लाई 5, ये 4 टाइम कट हो गया। V2 इज इक्वल टू 12 और 20 to 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो V2 आ गया हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। V2 आ गया हमारे पास 240 पाई। ओके, अब आपको क्या है, इन दोनों का रेशियो भी फाइंड करना है, V1 रेशियो V2 भी फाइंड करना है आपको। सो V1/V2 इज इक्वल टू 100 पाई अपॉन 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल,
0 से 0, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 10 अपॉन ये 5 अपॉन 12 भी हो जाएगा। सो V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 12। ये क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहाँ पे जिसका 12 की साइड के अबाउट रिवॉल्व किया है उसमें 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रिवॉल्व किया है। जिसके भी अबाउट रिवॉल्व करते हैं वो हमेशा हाइट होती है, रिमेनिंग जो साइड है वो हमारी रेडियस होती है। सो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। Now last question. Last question is a heap of a wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume heap to be covered. आपको first of all इसका volume find करना है। First question यहाँ पे ये है। The heap is to be covered by the canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. It means आपको क्या find करना है, CS से find करना है। इसमें 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट है आपका क्या फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम, और सेकंड है आपको CS से फाइंड करना है। सो लेट्स सी। डायमीटर 10.5, रेडियस 10.5 अपॉन 2 एंड हाइट 3 मीटर, वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 22/7, r की वैल्यू 10.5/2, 10.5/2 एंड मल्टीप्लाई 3 से 3 ये कट हो गया, 7 से ये कट हो जाएगा 1.5 टाइम। ओके, ये 11 टाइम कट हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5 डिवाइडेड बाय 2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे अप्रोक्स 86.625 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। ओके, अप्रोक्स ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको CS से फाइंड करना है। CS से फाइंड करने के लिए पाई आर एल फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। तो सबसे पहले आपको L फाइंड करनी है। L इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r की वैल्यू 10.5/2। इसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5.25। ओके, 5.25 ले लेती हूँ प्लस 3 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 5.25 का निकालेंगे स्क्वायर और 3 का स्क्वायर निकाल के 9 करके सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू अप्रोक्स आएगी आपकी 36 के अप्रोक्स आने वाली है। एक बार कैलकुलेशन आपको करके चेक करनी है। 36.56 अप्रोक्स और L की वैल्यू हो जाएगी 6.04 सेंटीमीटर। ओके, ये वैल्यू आपकी आ गई है। इसके बाद आपको कैनवास निकालना है, CS से निकालना है। CS से पाई आर एल 22/7 मल्टीप्लाई R की वैल्यू 10.5/2 और L की वैल्यू 0.64। इसे सॉल्व करेंगे 1.5 आ जाएगा यहाँ पे। ये 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 6.04। इन्हें कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 99.825 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो कैलकुलेशन आपको अपने आप करके देखनी है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन।